Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. See, I never thought about being an actor. Uh, my brother is an actor and he's been pursuing acting since long. But I never thought about it. Actually, मैंने बैंक में ही ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इतना वेट पुट ऑन कर. तो उसके बाद फिर मुझे करीब मैंने 18 kgs लूज किया मेरे पहले प्रोजेक्ट से पहले, और उसके बाद फिर चल रहा है कंटिन्यू. बेसिक स्ट्रगल जो था वो तो हमेशा वहीं पर बना हुआ था, वो सारी चीजें चली रही थी. मैंने कभी फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली अपने घर वालों से, लेकिन मोरली वो हमेशा मेरे साथ में थे. उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि क्यों कर रहा है. नागिन के थ्रू मुझे काफी लोगों ने जाना, काफी उसकी वजह से मुझे काफी लोगों ने अभी तक लोग बोलते हैं सर आप नागिन में आते थे ना. मैंने कहा मैं आता नागिन में आता था. हमारा इंडियन सिनेमा जो है वो अभी बहुत ज्यादा ओपन नहीं हुआ है चीजों को लेकर के. सो एंड एक एक्टर है वो एक इमेज चाहता है कि उसकी कुछ तरह की इमेज रहती है वो मेंटेन करके रखे. सो मैं ओपन हूँ अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए डेफिनेटली, बट कुछ ऐसी चीज है जो अगर इनअप्रोप्रिएट है तो वो मैं नहीं करूँगा. Hi Puneet, welcome to eTimes TV. How are you doing? I'm doing great. How are you? I'm good. So tell us what's new. Tell us about your role in Sirf Tum. How's it going? How's the response? Actually, it's quite a different character what I've done in past, because I was doing Nati Pinky Ki Lambi Love Story, that was the positive lead of the show. But now here it's the negative lead of the show, and it has it's not totally negative kind of character, but it is a grey kind of character because it has some shades. He's not bad at heart. He doesn't do bad with people just like that. When he has purpose and he wants to achieve something, for that he goes and he can do anything for that, and by hook or crook he should get it. So the character is like that because he had some past history. Just like that, you can say that in the show, the Ranveer is my stepbrother, and he's younger to me. And so my father doesn't know that I am there. He knows in somewhere that I have son, but who is that guy? He doesn't know. And my stepbrother Ranveer doesn't know who I am. And so it's a kind of secret, but I know everything because I get to know from my mother after so many efforts. So that's the background, and he's elder to him. So whatever Ranveer has, he wants that to be his own. So that's why he's fighting for his right, and a lot of things are happening in between. So he meets Sohani and he falls for Sohani eventually. So he can't see him happy that way. So that's why he's creating obstacles in front of them. So that way it's going. And if we talk about the response of people, are they are surprised for me because they didn't see me in such a great character. So they are really surprised, and they want to see more. So this is the response right now, and hopefully they'll get to see me more, and fingers crossed they're gonna like it. So hero play करने के बाद you signed up for this grey shade. So any inhibitions there were in your mind? See, पहले तो मैं नहीं कर रहा था ये कैरेक्टर क्योंकि मुझे लीड करना था और हीरो का ही कैरेक्टर करना था. तो बट ऑफर भी हो रहे थे मुझे, बट कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा था कि जो मुझे लगे कि मैंने लास्ट किया उससे थोड़ा सा अलग हो, या क्योंकि सेम कैरेक्टर करने से
एक एक्टर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. So that way I got to know about this project and उन्होंने मुझे अप्रोच किया. मैंने मना किया उन्हें कि मैं नेगेटिव लीड नहीं करूँगा, बट उन्होंने कहा कि एक बार आप नेगेटिव नहीं है ये, इट्स काइंड ऑफ लाइक ग्रे शेड है इसमें, और पॉजिटिव भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा. तो उन्होंने कहा एक बार आप स्टोरी सुनो. तो मैंने स्टोरी सुनी, उनका जो उसका नरेशन मुझे हुआ, तब मुझे पता चला कि यार इस तरह का कैरेक्टर है. तो आई लाइक्ड इट. तो मैंने कहा क्यों ना हाथ आजमाया जाए इसमें. And how was the working experience with Vivian and Isha? They are very good co-actors. I must say. Everybody on the set, the co-actors are very good, and most of them are very experienced, and everybody is experienced over there. So the working वहाँ पर जो काम करने का तरीका है, जो जैसे हम लोग काम करते हैं, और सब प्रोफेशनल है, और सभी लोग, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है. सब एकदम हम लोग अच्छे से जेल हो गए हैं. अभी बहुत सारे कैरेक्टर से मेरी खुद की मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि हमारा साथ में शूट नहीं हुआ. तो अभी उनसे भी मिलना होगा, एंड होपफुली हम लोग का बॉन्डिंग अच्छी रहेगी. अभी तक तो अच्छी मेरी विपिन के साथ में, ईशा के साथ में, और जो सोनिया है उसके साथ में जो रिया प्ले कर रही है. वी आर गुड बडीज. अच्छी. I mean, हीरो का रोल प्ले करते हो तो लाइक इट कम्स नेचुरली, यू नो, लाइक मतलब you are a good person, so you have to portray good person on screen. But negative kirdar ke liye, like, you have to be someone who you're not in real life. Okay, like people have to hate you. So like were there any mental challenges, or like what kind of preparation did you take for the role? See, that's what I'm saying. This is the different side of the coin for negative characters. कि लोग इस कैरेक्टर को नफरत तो ठीक है, इस कैरेक्टर से प्यार भी करेंगे. इसीलिए मैंने ये चैलेंज लिया क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है वो उसके पिताजी के कारण उसकी लाइफ में उसने जो भी कुछ सहा है, उसकी माँ अकेली रही है, उसकी माँ ने उसकी परवरिश की है. तो दैट वे ही इज गोना गेट सिंपैथी. ही इज नॉट टिपिकल काइंड ऑफ विलन जिसका कोई मोटिव नहीं है. ही जस्ट वांट्स things to happen his way, and उसे सब कुछ चाहिए और उसको बीच में दखल डालना, इस तरह का नहीं है. उसके पीछे मोटिव है उसका, उसके पीछे उसके साथ जो सफरिंग रही है उस चीज का पेन है उसके अंदर. और मैंने कहा ना कि वो हर किसी के साथ बुरा नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा किसी के साथ भी. उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए, कुछ मोटिव होना चाहिए, तब वो करेगा. सो इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बाकी के जो ग्रे शेड और नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उससे थोड़ा सा उनको अलग लगेगा, और इसके लिए सिंपैथी भी जागेगी हीरो के साथ में. Okay, tell us, we are almost nearing the end of 2021. How has the year been for you so far? You can say it's a mixture of things because it's been I spent a good time shooting for Shakti, and after that the lockdown came out, so I spent good time with my family. I went out, I explored, I stayed in Indore for some time, and I came back over here. So it's been a happening year, I can say that for me. So I got to work also, and my new projects started in this year. So ये भी अच्छा रहा और अभी तक अच्छा जाता जा रहा है, and hopefully आगे भी अच्छा जाएगा. बाकी का एक हाथ जो महीना बचा है. You know, when you're playing the lead actor, there is a lot of responsibility on your shoulder, and then when the show suddenly goes off air, how difficult is it to overcome? See, you asked a very correct question, because it's very difficult to overcome such projects which are very close to your heart. Because Nati Pinky was not a general kind of GAC or general story. It was out of the box kind of story, and the thing was going very nicely before the lockdown. And when the lockdown came, then we didn't get
that good response because of the connectivity. We didn't get that connectivity because it was a new show before lockdown also. So after that, we didn't get that good response, and timings also fluctuated. So a lot of reasons came up, and that's why it didn't work out. So yes, definitely, it feels bad when something good shuts down. But I'm a positive person. I keep myself positive always. So that way, new things coming up, and I enjoy doing new characters, and that's why I took up this challenge of Ansh in Sifton. I mean, ऐसे shows चलते चलते like also when a show goes off air, like naturally also, an actor has many aspirations, financial planning होता है बहुत, and then lockdown के दौरान बहुत सारे off air चले गए. Like, what are the challenges that you have faced in these 2 years? Actually मैं कहूँ तो मेरे लिए इतना ज्यादा, although काम काफी बंद था, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद भी हम लोग शूट कर रहे थे. तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था कि बिल्कुल चीजें बंद थी. थोड़े टाइम के लिए बंद होता था, लेकिन थोड़े रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हटते थे, हमारा काम स्टार्ट हो जाता था. तो लकीली आई वाज शूटिंग इन ऑल दोस टाइम्स इन दैट पीरियड. जब पहला लॉकडाउन लगा था तब भी हमारा शो स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने शूट किया था. सो ऑलमोस्ट अक्टूबर तक हम लोगों ने मेरा नाटी पिंकी शूट किया था. और उसके बाद फिर 2 महीने का ब्रेक था. उसके बाद फिर मैंने शक्ति ज्वाइन कर लिया था. सो दैट वे ब्रेक भी मिला, काम भी था. तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा. बट हाँ, पहले के और अभी के प्रोजेक्ट्स में आई थिंक थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आया है कुछ चीजों को लेकर. बट आई थिंक धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आ रही हैं, तो इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए फ्यूचर में. And TV के अलावा भी are you like looking at like other working on other platforms? रिसेंटली आप जानते हो कि टीवी में अगर आप कुछ काम स्टार्ट करते हो तो यू डोंट गेट टू गेट लॉट ऑफ टाइम आफ्टर दैट, क्योंकि बैक टू बैक शूट्स रहते हैं. तो हम कहीं पर और कमिटमेंट कर नहीं पाते हैं. तो उसकी वजह से अभी तो मेरा यही सिर्फ प्रोजेक्ट है. डेफिनेटली आई वुड लाइक टू वर्क विद for some good OTT platforms, or with some good directors and good series, good web films or films also. So it depends on opportunity I get. So whenever the opportunity will come and I get the right kind of role which I want to play, or which looks exciting to me, so I'll definitely do it. If I had read somewhere that you had lost 18 kgs before entering in the industry. Tell us why, and like how did acting happen to you? I never thought about being an actor. My brother is an actor and he's been pursuing acting since long. But I never thought about it. So I did my MBA from Indore, and I joined one bank, and I was working there as a manager. So I started from there, and 1-1.5 साल मैंने वहां पर जॉब किया. तो मेरे नेचर के थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा था कि आपको रेगुलरली वही ऑफिस में जाना है, वही डेस्क पे बैठना है, वही सारे काम करने हैं बैक टू बैक. और तो वो सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी. मैंने कहा यार मैं इस चीज के लिए तो नहीं बना हूं. सो देन आई रिजाइन्ड, एंड विदाउट एनी न्यू अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, एंड विदाउट एनी गुड अपॉर्चुनिटी. सो मैंने ऐसे ही रिजाइन दे दिया था. तो मेरे भाई ने मुझसे बोला कि यार एक बार एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करके देख ले कोई. तो मैंने एक्टर प्रोपेस ज्वाइन किया उनके कहने पर. 1 महीना मैंने ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा. तब मुझे लगा कि हाँ, इसमें मैंने अपने आप को एनालाइज किया, और उसके बाद फिर जैसी जैसी चीजें होती गई मेरे साथ, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे ट्राई तो करना ही चाहिए.
बाकी आगे देखते हैं, एमबीए तो किया हुआ है, कुछ ना कुछ तो बाद में खरीद लेंगे। सो दैट वे मैंने ट्राई किया और स्ट्रगल काफी रहा शुरुआती स्टेज पर। एक साल करीबन मेरे पास कोई काम नहीं था। काफी ऑडिशंस दिए मैंने, काफी जगह काफी चप्पलें घिसी, यू कैन से दैट। एंड आफ्टर दैट बस पहला ब्रेक मेरा साडाक सीजन 2 था, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई और अभी तक चलती आ रही है। और रही कहानी वेट लॉस की, तो जब आप जॉब करते हो और जब आप मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था। तो मैं आई एम अ बिग फूडी, मुझे बहुत सारी चीजें खाना पीना पसंद है, और खा पी कर जब आप बैठ जाते हो जब तो काफी पुट ऑन कर लेते हो। तो वही मेरा रूटीन था। तो मैं करीब 86-87 केजीज का हो गया था। तो फिर मैंने इंडस्ट्री में आने से पहले फिर मैंने बैंक में ही ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इतना वेट पुट ऑन कर। तो उसके बाद फिर मुझे करीब मैंने 18 केजीज लूज किया मेरे पहले प्रोजेक्ट से पहले, और उसके बाद फिर चल रहा है कंटिन्यू। But were you like told to lose weight? Audition में like did you face any No, such no, no, comments? no, no, Yeah, no, it was your nobody, personal decision. nobody told me to lose the weight or something like that. But मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था कि मेरा इतना वेट हो गया, क्योंकि मैं रहा हूँ कॉलेज में भी, मैं जिम वगैरह जाता था, एक्टिव रहता था, इतना ज्यादा वेट मेरा बढ़ा नहीं था। पर अब वो रेगुलर रूटीन में वही था, टाइम मिलता नहीं था। जब आप जॉब करते हो तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बहुत सारी चीजों से। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये गलत हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। देन आई स्टार्टेड। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली कहीं से, मैंने कोई डाइट प्लान्स वगैरह नहीं लिए। सब जैसा जैसा मुझे समझ था, जैसा मैंने स्टडीज की थी, उसके हिसाब से मैंने उस चीज को फॉलो किया। उसके बाद फिर वेट लूज किया। इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। हर चीज का एक अलग जर्नी है, अलग स्ट्रगल है, अलग फन है। I mean, as you said that your elder brother was already in the industry. Did he guide you, Yeah. or was it a big help to you कि आपको पता है कि how the industry works? या डेफिनेटली उससे काफी कुछ आइडिया मिल जाता है, तो उसकी वजह से मेरा टाइम काफी सेव हुआ। उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई कि किस तरह से काम होता है। लेकिन प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि किसी के बताने से या ऐसे समझाने से यू कांट अंडरस्टैंड थिंग्स जब तक आप प्रैक्टिकली उन्हें फेस नहीं करते हो। तो उन्होंने काफी चीजों का मुझे आइडिया दे दिया था कि इस तरह से चीजें होती हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। और तो उसकी वजह से मेरा काफी कुछ स्ट्रगल कम रहा। और लेकिन बेसिक स्ट्रगल जो था वो तो हमेशा वहीं पर बना हुआ था, वो सारी चीजें चली रही थी। मैंने कभी फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली अपने घर वालों से, लेकिन मॉरली वो हमेशा मेरे साथ में थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि क्यों कर रहा है और कितना टाइम लेगा, और जो भी चीजें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो डेफिनेटली हेल्प मिली, मॉरल सपोर्ट काफी था। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स मुझे मिले हैं वो बिना किसी रिकमेंडेशन के और बिना उसके पूरी प्रोसेस के थ्रू मैं गया हूँ। ऑडिशन हुआ है, लुक टेस्ट हुआ है, सिलेक्शन हुआ है उसके थ्रू। बाकी हाँ, काफी चीजों का हेल्प तो मुझे मिली कि मेरा स्ट्रगल थोड़ा कम रहा, मेरा टाइम थोड़ा सा बच गया उस वजह से। And any rejections या last minute में replace हो जाते हैं actors, we have heard from many, you know, 5 मिनट पहले shoot से replace हो गया। Like, did you ever face such a thing? ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, बट ऐसी चीजें होती हैं कि आप फाइनल हो जाते हो, लेकिन फिर आपको कॉल आता है कि सॉरी इस बार चीज बनी नहीं, तो उन्होंने किसी और को कास्ट कर लिया है। तो इनिशियल डेज में बहुत हुआ करता था ऐसा कि चीजें बहुत फाइनल प्रोसेस तक पहुंच जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर चेंजेस हो जाते थे। तो वो सारी चीजों का भी पता चला कि ऐसा भी होता है। तो जब तक आप सेट पर पहुंच नहीं जाओ, शूट स्टार्ट नहीं हो जाए, टेलीकास्ट नहीं हो जाए, तब तक स्टिल मेरे अंदर अभी भी ऐसा रहता है कि आई डोंट रिवील थिंग्स टिल द टाइम इट्स नॉट कंफर्म्ड। तो वो चीजें रहती हैं, क्योंकि इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल।
कि कब क्या हो जाए, कैसे चेंज हो जाए। हमारी जो इंडस्ट्री है काफी अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसकी वजह से हमें काफी कॉन्शियस रहना पड़ता है। पुनीत, जो आपने बोला दैट 1 साल तक काफी चप्पलें घिसे, tell us about that period, that how did you overcome, or did you feel के like मेरा भाई है, मुझे मिल जाएगा कुछ? Did you have that thought in mind ever? मेरे भाई ने ऐसा कभी नहीं मुझे कहा कि यार मैं हूं तो तुझे कुछ ना कुछ मैं दिलवा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस मुझे उन्होंने बताया कि कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, किन किन लोगों से मिल सकते हो, किन से नहीं मिलना चाहिए, और बाकी का काम मुझे ही करना था। तो ऐसा नहीं था मेरे दिमाग में। और उस टाइम पे मैंने कहा कि मुझे मॉरली किसी ने भी डाउन नहीं किया, और मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ। तो जो भी चीजें हो रही थी उनसे मैं सीखता था और आगे बढ़ता था। तो मैं चीजों को, जो भी मेरे सामने फेलियर्स आए, तो उससे मैं डिसहार्टन नहीं हुआ। उससे डेफिनेटली थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन मेरे अंदर हमेशा ये चीज रहती है कि अगर मुझसे कुछ गलत हो रहा है तो मुझसे सही करो, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ। तो वो एक अच्छी हैबिट है मेरे अंदर। तो उसकी वजह से काफी चीजों की सफरिंग बच गई, और मैं धीरे धीरे लर्न करके आगे बढ़ता रहा। तो उस तरह से जर्नी चल रही है। तो मैं, कोई भी कहते हैं कि वो मेरा बहुत खराब पीरियड था और मैंने ये सब सफर किया, लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक ऐसा पीरियड आता नहीं है तब तक आपकी लर्निंग नहीं होती। सो इट्स गुड इन दैट। But even like as you said कि 1 साल तक you didn't get any role, auditions दिए जा रहे हैं. Any like one point of time you felt के like I should go back to a corporate job, steady income रहेगा, यहाँ पे try नहीं, करने मेरे का? साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि एक्चुअली मुझे ऑफर्स हो रहे थे, बट बहुत छोटे छोटे रोल्स हो रहे थे। तो मैं उस तरह से स्टार्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि आप जानते हो इंडस्ट्री में कैटेगराइजेशन है। ऑल्दो मैं काफी रिस्क लेता रहता हूँ अभी जैसे मैंने लिए, बट स्टिल हमारी इंडस्ट्री में काफी कैटेगराइजेशन है कि आप अगर इस लेवल का काम कर रहे हो तो आपको इसी लेवल की चीजें मिलेंगी। रहा मेरे साथ भी, मैंने भी लीड से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने भी कैरेक्टर रोल से किया था। बट मेरा ऐसा था कि मुझे बहुत छोटे 1 डे 2 डे वगैरह से स्टार्ट नहीं करना है। मुझे कुछ सब्सटेंशियल होना चाहिए, कुछ अच्छे कैरेक्टर होना चाहिए, वहां से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए वो टाइम पीरियड ज्यादा था। नहीं तो छोटे छोटे जो कैमियोज रहते हैं वो मुझे मिल रहे थे, ऑफर हो रहे थे, लेकिन मैं कर नहीं रहा था। और अब जब आप कुछ चाहते हो, कुछ अपनी तरह से चाहते हो, तो उसमें डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ता है, उस चीज का स्ट्रगल अलग होता है। तो वो मैं कर रहा था क्योंकि मैं अपनी चॉइसेस जानता था कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, बेयर मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करना है, दैट आई न्यू। तो And अच्छा रहा। if we talk Yeah. about your journey, which show would you say has been your turning point? I would say that there have been a number of turning points in my career, I would say, because first was Sadak and the starting of my career. वो भी थोड़ा पॉपुलर था, तो यूथ में तो मुझे थोड़ी सी पब्लिसिटी मिली उसकी वजह से। चैनल वी पर आया करता था, तो इट वाज अ यूथ बेस्ड शो। तो वो एक अपॉर्चुनिटी, वो टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ का। बाकी उसके बाद जो मेरा टर्निंग पॉइंट रहा वो नागिन 3 था। नागिन के थ्रू मुझे काफी लोगों ने जाना, काफी उसकी वजह से मुझे काफी लोगों ने अभी तक लोग बोलते हैं सर आप नागिन में आते थे ना। मैंने कहा मैं आता नागिन में आता था। ऑल्दो उसके बाद मैं काफी प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, बट स्टिल पीपल रिकॉग्नाइज के सर आप नागिन में आते थे ना। मैंने कहा हाँ मैं नागिन में आता था। आप आदि का मुझे आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था। तो दैट वे इट्स बीन अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। और उसके बाद फिर नाटी पिंकी लंबी लव स्टोरी, उससे मुझे एक नया लीप मिला करियर में, तो वो एक रहा है। और उसके बाद फिर मैंने फिर से एक चैलेंज ले लिया है नेगेटिव लीड का। So, let's see how it turns out. But my fingers crossed, ऐसे कुछ टाइप कास्ट नहीं होगा मैं। I have seen many fun photos of you with Pearl and Surbi. How is the bond with them?
इट वाज गुड, वेरी गुड। नागिन में भी हमारे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे, हम लोगों का यंगस्टर्स बहुत सारे थे उस शो में, तो हम लोगों का जो ग्रुप था वो अलग ही था। हम लोग बहुत मस्ती करा करते थे, मतलब हम लोग जब भी शूट करने जाते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि हम शूट करने के लिए गए हैं। इट वाज लाइक सम काइंड ऑफ गेट टुगेदर ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल। और जो मतलब हमसे जो जिनकी एज ज्यादा थी तो वो लोग भी बड़े कूल टाइप के थे, जैसे uh, uh, हमारी रक्षंदा मैम हुई या चेतन सर हुए, सो दे वर वेरी कूल। सो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहा करता था। इट वाज लाइक one of the best time I spent on sets. And how did Nagin happen to you? Same process. They called me. They took my audition. They did some look tests and all, and they said they asked me to sign the papers, and it happened. Started I mean, also that. being part of Ekta Kapoor's project, like many consider that it brings a big boom to your career. Do you feel Yeah, the same? yeah. It was. As I said, it was a turning point for me because a lot of people saw Nagin 3 and it was the most successful season of the series. So and definitely that was a turning point for me, and I'm very thankful to her that she chose me for that character. Puneet, tell us like any childhood incident that has helped you like shape up your personality the way you are. Any such incident you have? Actually, I have very जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाता हूँ मेरे साथ में ऐसी पर्टिकुलर कुछ मेमोरी नहीं रहती। मेरी ऐसी नेचर ऐसी छोटी छोटी चीजों से बहुत समझता हूँ, सीखता हूँ, देखता हूँ। तो बट मेरे साथ ऐसा है कि वो पर्टिकुलर मेरी चीज में मेमोरीज नहीं रहती, बट उसका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे दिमाग में रह जाता है। सो दैट वे बहुत सारी चीजें हुई हैं लाइफ में जिसकी वजह से जो मुझे स्ट्रेंथ देती हैं, जो मुझे पॉजिटिव रखती हैं, और बेसिकली मेरा नेचर वैसा हो गया उसकी वजह से। बट इफ यू आस्क मी कि किस वजह से है, कौन कौन से इंसिडेंट रहे हैं, तो वो मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आई डोंट रिमेम्बर इवेंट्स, आई रिमेम्बर द learning out of it. My nature is like that. Any college में fight scene या like how were you as a student? Like the students one या मारपीट वाला? इसी कॉलेज स्कूल जो रहा मेरा बड़ा ही पेचीदा रहा क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल मेरे चेंज हुए। मैं 5-6 स्कूल करीबन मेरे चेंज हुए, तो वहां पर तो ऐसा कुछ मेरा स्कूल फ्रेंड्स का सर्कल नहीं बन पाया क्योंकि हम लोग पहले शिवपुरी में थे, जो कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास में एक जगह है शिवपुरी। तो वहां पर मेरी स्कूलिंग हुई थी 6-7 क्लास तक। उसके बाद फिर हम लोग मम्मी का ट्रांसफर हो गया था तो हम लोग इंदौर शिफ्ट हो गए थे। तो वहां पर मेरी बाकी की पढ़ाई हुई, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो उस दौरान मेरे स्कूल काफी चेंज हुए थे, तो स्कूल लाइफ तो मेरी ठीक ठाक रही। बाकी हाँ, कॉलेज लाइफ में मैंने बड़ा लाइक इट वाज वेरी आई कैन से इट वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ। तो वहां पर मैंने काफी पढ़ाई भी हुई, काफी दोस्त भी बने, काफी हमें एंजॉय भी किया। सो दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। सो मैं कॉलेज में स्कूल में काफी शाय टाइप का बंदा था, लेकिन कॉलेज में आते आते तक आई वाज लाइक ओपन काइंड ऑफ गाय, और सबसे मुलाकात होती थी। ऐसा कोई हो तो भले ही मुझे नाम याद नहीं हो, लेकिन मुलाकात सबसे होती थी। दोस्त बहुत सारे थे कॉलेज में, तो उस तरह का नेचर आया मेरा। तो मैं लोगों से तो अच्छे से मिल ही लेता हूँ खुद कर। बट एज यू सेड कि आपको एक्टर बनना नहीं था एंड यू वर वर्किंग इन अ बैंक, but while seeing your brother on screen, like how was that feeling? Like कभी उस टाइम कभी did you feel कि मुझे भी ऐसे स्क्रीन पे दिखना है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने भाई को जब स्क्रीन पर देखता था डेफिनेटली, क्योंकि घर मिडिल क्लास फैमिली में से उठकर कोई इंसान अगर कहीं पर जाकर अपनी
नाम बना रहा है, मकाम बना रहा है, तो डेफिनेटली इट्स इंस्पायरिंग। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। तो एक सोच होती है आपकी कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में पहले सोचते हैं, सिक्योर जॉब के बारे में पहले सोचते हैं। तो इंडस्ट्री इज वेरी रिस्की, देयर इज नथिंग सर्टेन अबाउट इट। तो अभी है, कल होगा, नहीं होगा, पर तो यू नेवर नो कि आपका लास्ट काम कब है। सो दैट वे मैंने सोचा था कि यार भैया, बड़े भाई हैं वो, अगर इस इंडस्ट्री में है तो किसी को तो स्टेबल कुछ होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊंगा, ऑल्दो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम। बट उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार शायद तो जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे नेचर के अपोजिट है। तो दैट्स व्हाई छोड़ा मैंने। उसके बाद फिर बचपन से मैं मूवीज वगैरह बहुत देखा करता था, कॉलेज टाइम में बहुत मूवीज देखा करता था मैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरे घर में सबसे ज्यादा मूवीज मैंने देखी होंगी। तो देखने का शौक था मुझे, काफी अच्छा लगता था, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ में देखा करता था इंग्लिश मूवीज, हिंदी मूवीज। तो ऐसा कहीं ना कहीं होगा जो चीज जिसने मुझे इंस्टिगेट किया कि हाँ चलो एक टाइम के बाद ट्राई करते हैं। सो ऐसा पहले था नहीं, लेकिन इवेंचुअली इट हैपेंड एंड इट्स वर्किंग वेल सो फार। Miss, it's the December season, festive season है. What are your New Year plans? My New Year I'm very boring about parties and all, you know. I don't do much parties. I'm more like a house party guy. So मेरी sister है, वो अभी आई हुई है यहाँ पर, and she'll be staying over for some time. So definitely my plans for New Year is like a house party or something like that. So अभी तो वही plans हैं, और December is my birthday month. So काफी हैपनिंग रहता है। बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स, मतलब कि क्लोज से उनका दिसंबर में, मेरा भी है, तो इट्स गोना बी अ पार्टी मंथ आई गेस। You know, Puneet, as you said that अभी तो आप टीवी में काम कर रहे हो, but you would wish to explore other platforms as well. And you also said that you are an introvert. I mean, No, I'm not introvert. I'm not introvert. Okay. Like I used to be introvert. Like currently, I'm not introvert, but I speak that much only which is required. I'm not introvert. I don't keep things in myself, but I speak what is necessary. I mean, digital platform में I want to ask you, like, how comfortable are you, like, pushing your limits, or like about intimate scenes on screen? See, it's a very hypothetical answer, but that's true with me, that if it depends on the scene, or it depends on the story, it depends on the requirement. So I believe in that. So अगर उस तरह का कुछ अगर है तो मुझे उन सारी चीजों में प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, अगर फोर्स्ड है वो, अगर जबरदस्ती डाला जा रहा है मिर्च मसाला डालने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो मैं नहीं करता हूँ। वो मैंने बहुत सारे, मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी आए थे, कुछ ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पर इस तरह की चीज बन रही है, तो वहाँ के लिए मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए थे। बट लोग करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं वहां पर जब तक कुछ भी क्रिएटिव या समथिंग उसमें कुछ हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तब तक मुझे मजा नहीं आता वो करने में। सो आई रिजेक्टेड दोस आल्सो। But you have no personal limitations as such. Personal limit, obviously there will be some personal limitations, क्योंकि हम एक सोशल, हमारा इंडियन सिनेमा जो है वो अभी बहुत ज्यादा ओपन नहीं हुआ है चीजों को लेकर के। सो एंड एक एक्टर है, वो एक इमेज चाहता है कि उसकी कुछ तरह की इमेज रहती है, वो मेंटेन करके रखे। सो मैं ओपन हूँ अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, डेफिनेटली। बट कुछ ऐसी चीज है जो अगर
इनअप्रोप्रिएट है तो वो मैं नहीं करूँगा. And what about reality shows? How competitive are रियलिटी you? शो में Okay, like you would रियलिटी like to, शोज में रियलिटी शोज में मुझे मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, अपने आप को इमेजिन नहीं किया रियलिटी शोज में, बिकॉज मैं देखता भी नहीं हूँ उन्हें, मैं उनसे इतना ज्यादा कनेक्ट कर नहीं पाता हूँ. तो मुझे अब वहां पर हीट ऑफ द सिचुएशन में क्या होगा, कैसे मैं रिएक्ट करूंगा, दैट आई आल्सो डोंट नो, बिकॉज सामने से क्या आने वाला है और मैं उसको कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ. क्योंकि रियलिटी में यही रहता है कि बहुत सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल रहती हैं. तो अभी मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, अभी मेरा मेन फोकस एक्टिंग पर ही है. तो मैं चाहता हूँ अभी इसी चीज को फोकस करूँ. बाद में अगर अभी कभी लगा कि यार चलो कुछ ट्राई करते हैं तो देन आई विल ट्राई समथिंग. thank you so much for being with us. Thank you so much. Thank you so much, Subramanian. It was really nice talking to you. Same here, and wish you all the best for your new show. Yeah. Thank you so much. Thank you. Stay connected and stay safe. Yeah, definitely. Yeah, you take care. Bye-bye. Bye. Nice talking to you. Yeah. Bye.